right? What is ignition delay? Can you tell me? Anyone? Okay. तो बेसिकली हमने क्या कहा कि इन द एशिया इंजन, सीआई इंजन और एशिया इंजन में क्या डिफरेंस है कंबशन का? द सीआई इंजन द फ्यूल गेट्स ऑटोमेटिकली क्या? Automatically burned without the help of a spark, but in case of SI engine we required a spark plug to generate the spark, right? ठीक है, तो ये differences है दोनों का combustions में, ठीक है? That is why it is called a spark ignition engine and the CI engine called compression ignition engine. Due to the compression of the fuel, the ignition is taking places, right? ठीक है, these are the difference between these two, ठीक है? Just we are going to discuss about the stages. What is the stages in the CI engine? Look at the figure here. Different type of stages are there. Different type of stages. What here? Stages here. Okay. So देखो, this is what? This is the degree, right? Theta, that is the crankshaft rotation. This is crankshaft rotations, right? ठीक है, and this is your pressure. This is the what? This is your pressure. This is the pressure. This is pressure. Suppose just we are going to draw a curve here. The curve is like same as that of the in the case of in case of spark ignition engine. Okay, but there is some differences, right? What is the differences? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? There will be 4 stages. ठीक है, stages will be how much? STAGE, stages of combustion in CI engine, right? ठीक है, तो there will be 4 stages. First stage what? Ignition delay period. Ignition delay period, right? दूसरा क्या होता है? अनकंट्रोल्ड कंबशन. थर्ड क्या होता है? कंट्रोल्ड कंबशन. कंट्रोल्ड कंबशन. एंड फोर्थ इज व्हाट? आफ्टर बर्निंग. आफ्टर बर्निंग. दिस इज द कॉमन, राइट? ठीक है, ये आफ्टर बर्निंग किस में आता था? आपका पेट्रोल इंजन में भी आता था, राइट? ठीक है, दिस ऑल आर द स्टेजेस इन द सीआई इंजन, दैट इज द कंप्रेशन इग्निशन इंजन, राइट? क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, यस सर. okay, this is the point. Suppose this is the point where we are going to start the injections of the fuel. ठीक है, fuel injection. ठीक है, this is the point, that is the point A. Suppose this is the point A, right? This is the point where we are going to start the combustion. ठीक है, combustion start. Right? And this is the point, that is B. Suppose this is B, right? ठीक है, and this is the point where we can achieve the maximum value of the pressure or temperature, right? Suppose this is the point C. ठीक है, तो ये मेरे पास कितना रीजन हो गया? This is the region here. This is the region, that is our stage. This is stage 1, this is stage 2, right? This is stage 2, and after that this is D here. ध्यान से देखिएगा फिगर, जस्ट थोड़ा सा अंतर है इसमें. ठीक है, प्रीवियस बताया था जिसमें. दिस इज द स्टेज 3 एंड दिस इज स्टेज 4. सपोज दिस इज DE. So this is the stage 4, that is after burning process, right? This is stage 4. Clear? ठीक है, तो look at the first one, ignition delay. What is ignition delay? Can you tell me?
Can you tell me what is ignition delay? What is ignition delay? Anyone? सर जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के मतलब तुरंत बाद रिटर्निंग होता है तो उसको Okay. डिले होता है। ओके देखो, तो बेसिकली क्या होता है, इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है, इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है बिफोर, इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है बिफोर, सपोज दिस इज द टीडीसी सेंटर, दिस इज सपोज टीडीसी, दिस इज द पॉइंट ऑफ टीडीसी सेंटर, ठीक है। फ्यूल गेट्स इंजेक्टेड बिफोर रीचिंग द टीडीसी सेंटर, राइट। हाउ मच द क्रैंक एंगल विल बी देयर, सपोज दिस इज 20 डिग्री, राइट। 20 डिग्री पहले हम क्या करते हैं, यदि मिड सेंटर क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन जो होता है कंप्लीट 0 डिग्री आने से 20 डिग्री पहले हम क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर को हमने ओपन कर दिया, राइट, ठीक है। बिकॉज क्यों ओपन किया, क्योंकि ये कुछ टाइम लेगा, बर्निंग में कुछ टाइम लेगा, ठीक है। दैट इज द इग्निशन डिले। याद है मैंने बताया था इग्निशन डिले उसमें भी होता है पेट्रोल के केस में, ठीक है। देयर विल बी सम टाइम, दे विल टेक सम टाइम टू इग्नाइट द फ्यूल टू रीच द self ignition temperature of the fuel, right. Similarly in the case of diesel engine also these are happening, right, ठीक है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, इग्निशन डिले यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक फिजिकल डिले होता है, एक यहाँ पे केमिकल डिले होता है। तो फिजिकल डिले क्या होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल डिले की हम बात कर लेते हैं इग्निशन डिले के केस में। फर्स्ट वन इज फिजिकल डिले, राइट, फिजिकल PHYSICL फिजिकल डिले, राइट। तो फिजिकल डिले में क्या होता है कि इंजेक्शंस ऑफ द फ्यूल इन द एटमाइज्ड फॉर्म इज इनिशिएटेड, राइट। फ्यूल देखो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल इन द एटमाइज्ड फॉर्म इज इनिशिएटेड इनटू द कंबशन चेंबर, राइट। यहां से क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं एटमाइज्ड फॉर्म में इनटू द कंबशन चेंबर। एम आई राइट हियर? That combustion chamber containing what? That have the compressed air, right? ठीक है। और फ्यूल इंजेक्शन क्या करता है कि it get not immediately burnt, ये क्या है अचानक से जलता नहीं है, क्यों? Because it will acquire some time for the preparations of the burning, ठीक है। ये क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको अचीव करने में थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्लियर। और यहाँ पे इंजेक्शन फ्यूल जो एटमाइज्ड फॉर्म में आता है तो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे विल गेट्स वेपोराइज्ड, वो क्या करेगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर। यदि मान लो कि फ्यूल का ड्रॉपलेट आया तो वो क्या करेगा, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, द फ्यूल गेट्स वेपोराइज्ड, वो वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। यदि मान लो मॉलिक्यूल को छोटा कर दिए तो वो इजिली जल जाएगा, राइट, ठीक है। मॉलिक्यूल को एटमाइज्ड फॉर्म में कर दिए तो इजिली जल जाएगा, दे विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, राइट, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो टेम्परेचर यदि टेम्परेचर जो इनसाइड द सिलेंडर होगा, यदि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द डीजल फ्यूल के बराबर हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, द फ्यूल गेट्स इग्नाइटेड, ठीक है। एंड प्रेशर एज वेल टेम्परेचर ऑफ द एयर will gets increased. Am I right or not? Am I right or not? Am I right or not? Okay, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है that is a time, this time when the transformation of the liquid droplet of the fuel मतलब डीजल फ्यूल, राइट, ठीक है। लिक्विड ड्रॉपलेट ऑफ द फ्यूल क्या करता है, ये ट्रांसफर होता है इनटू द फॉर्म ऑफ गैसियस, राइट, इनटू द गैसियस फॉर्म, राइट, ठीक है। दैट इज नोन एज आवर फिजिकल डिले, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कन्वर्ट द लिक्विड ड्रॉप इनटू गैसियस फॉर्म, दैट इज आवर व्हाट, दैट इज आवर फिजिकल डिले, ओके। और केमिकल डिले क्या हो गया, केमिकल डिले इज नथिंग, इट इज द टाइम कंज्यूम्ड इन प्रिपरेशन फॉर द सेटिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। सर आपका आवाज इज द टाइम टू अचीव the self ignition
temperature. Is it clear or not? Please tell me, am I audible or not? Hello. Yes, sir. ओके तो समझ में आया क्या होता है दोनों में डिफरेंस. There is a ignition delay, right? Ignition delay may be two types. That is the first one is physical delay and another is chemical delay. ठीक है? Another is chemical delay. तो physical delay क्या होता है? Physical delay is where the liquid form of droplet gets into the gaseous form. ठीक है? The liquid form or droplet of the fuel gets into the gaseous form. This time taken is known as physical delay. But what is chemical delay? Chemical delay is nothing. It is the time taken to achieve the or acquire the self ignition temperature of the fuel. That is known as our chemical delay. Is it clear or not? Is it clear or not? Is it clear or Yes, not? sir. Yes, sir. Okay. अब इसका इफेक्ट क्या होता है देखते हैं. इसका इफेक्ट क्या होगा. इसका इफेक्ट नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड कंबशंस. एंड व्हाट इज अनकंट्रोल्ड कंबशंस. ओके तो ये जो आपका होता है ड्यू टू आपका जो इग्निशन डिले को क्या करते हैं हम कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं इग्निशन the top center we are going to open the fuel injection system, right? ठीक है. तो बेसिकली पहले हम इसको इनिशिएट करते हैं, राइट. ठीक है. can observe here that during the ignition delay, ठीक है, during the ignition delay period also the injection of the fuel is continued. ठीक है. देखो during the ignition delay कहने का मतलब क्या हुआ. They are taking the time to burn. ठीक है. तो ड्यू टू फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से क्या कर रहा है. फ्यूल क्या कर रहा है कंटिन्यूअसली इन कर रहा है, राइट. ठीक है. और दे विल एक्यूमुलेट. ये क्या कर रहा है विशाल. am I audible? Yes, sir. ओके तो अब क्या Yes, होता sir. है कि अब ड्यूरिंग द इग्निशन डिले क्या होता है. द फ्यूल कंटिन्यूअसली इंसर्टिंग और फ्यूल कंटिन्यूअसली एंटरिंग द कंबशन चेंबर. अब क्या हो देयर विल बी एक्यूमुलेशन. बहुत ज्यादा मात्रा में क्या फ्यूल क्या हो गया एक्यूमुलेट हो गया इनसाइड द कंबशन चेंबर. अब क्या करेंगे व्हेन द फ्यूल विल गेट when the fuel temperature gets reached at the self ignition temperature. जब फ्यूल का जो टेम्परेचर होगा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर will be increase in the pressure that will from B to C. From B to C there will be rapidly increase in the pressure as well as temperature. ठीक है. Due to this there will be a knocking phenomena, right? ठीक है. Knocking phenomena how often? Due to the ignition delay. Ignition delay यदि नहीं होता मेरे पास तो accumulation of the fuel नहीं होता और accumulation of the fuel नहीं होता तो मेरे पास कंट्रोल्ड कंबशन नहीं होता. ठीक है. तो अचानक से जो कंबशन हुआ that is known as uncontrolled combustion. And due to this uncontrolled combustion the knocking phenomena is happening in the CI engine. Is it clear or not?
क्यों होता है? ड्यू टू द इग्निशन डिले पीरियड। ठीक है, तो सीआई इंजन में हमेशा पूछा जाएगा कि क्यों होता है इग्निशन, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, नॉकिंग क्यों होता है? ड्यू टू द इग्निशन डिले, राइट, ड्यू टू द इग्निशन डिले। क्लियर? ठीक है, तो इग्निशन डिले कैसे होता है समझ में आया? ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड कंबशन ऑफ द फ्यूल। ठीक है, उसके बाद मान लो कि एक्यूमुलेटेड फ्यूल क्या किया, कंप्लीट कंबशन हो गया, और उसके बाद भी क्या है, अप टू द कट ऑफ पॉइंट। अप टू द कट ऑफ पॉइंट कहने का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है, यहाँ पे कांस्टेंट, दिस इज द कट ऑफ पॉइंट, उसके बाद एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है, दैट इज फ्रॉम डी। ठीक है, एट द पॉइंट डी। ठीक है, तो अप टू डी तक क्या होता है, यहाँ पे जितना फ्यूल रहता है कंटिन्यूसली फ्यूल क्या करते हैं, हम इंजेक्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक क्या रहता है, कट ऑफ पॉइंट तक हमारा फ्यूल जो होता है कंट्रोल्ड मैनर में बर्न करना शुरू कर देता है। अनकंट्रोल कहां से कहां तक हुआ? अनकंट्रोल कंबशन विल बी फ्रॉम बी टू सी, एंड आफ्टर दैट सी टू डी there will be a controlled combustion process। ठीक है, जैसा जितना अमाउंट ऑफ फ्यूल हम इंजेक्ट किए उतना अमाउंट ऑफ फ्यूल उसी प्रोपोर्शन में कंबशन हुआ, राइट, क्लियर? तो दैट इज नोन एज कंट्रोल कंबशन, राइट। ठीक है, आफ्टर बर्निंग प्रोसेस इज व्हाट, सिमिलर इन द, जैसा कि हमने बताया था डीजल स्पार्क इग्निशन के केस में उसी तरह होता है। सम कुछ पार्ट्स ऑफ द फ्यूल क्या रहता है, रिग्रेंड रह जाता है। ठीक है, तो आफ्टर द एक्सपेंशन स्ट्रोक व्हाट इज हैपनिंग, the combustion process are continued। ठीक है, after when the piston gets traveling from top mid center to bottom mid center, the ignition is also there। ठीक है, the remaining portion of the fuel gets ignited during this process, and this process is known as our afterburning process, that will be in at the point E। ठीक है, this is the afterburning process। Is it clear or not how the combustions are taking places in the CI engine? Is it clear to all of you or not? Tell me, is there any doubt? Is there any doubt? No, sir. ओके, तो दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा कि आपका कंबशन, डिस्कस द कंबशन फेनोमेना इन सीआई इंजन एज वेल एज आईएसआई इंजन। तो आप समझ के लिख सकते हो, ये ग्राफ आप लिखना। ठीक है, इसमें 4 प्रोसेस 4 स्टेजेस होता है सीआई इंजन के केस में, लेकिन इन द केस ऑफ एसआई इंजन 3 स्टेजेस होता है, देयर आर 3 स्टेजेस, राइट। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है, और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, दैट इज देयर विल बी अ डेटोनेशंस और नॉकिंग फेनोमेना। ठीक है, ड्यू टू द इन द केस ऑफ एसआई इंजन क्या होता है, एसआई इंजन के केस में किस लिए होता है डेटोनेशन, that due to the pre-ignition, right, pre-ignition and as well as unbalanced combustion। ठीक है, but in case of CI engine due to the ignition delay। ठीक है, this is the major reason behind the detonation or knocking of the engine। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखना। Anyone want to tell what is auto ignition? What is auto ignition? Kameshwar, please tell me what is auto ignition? auto ignition सर, जब सर किसी वजह से स्पार्क होने से पहले बर्निंग हो जाता है फ्यूल का, तो उसको ऑटो इग्निशन कहते हैं। ओके, ऑटो इग्निशन के लिए आपको स्पार्क की जरूरत है या कोई फ्लेम की जरूरत है? नहीं सर, स्पार्क की जरूरत नहीं है। Pranav, can you tell me what is misfiring? What is misfiring? Pranav is not there, only they are attending the classes। Okay, ठीक है, किशोर, what is pre-ignition? किशोर कुमार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो जी खुद से। देखो, ज्यादा अच्छा से पढ़ना है तो बुक भी पढ़ा करो। ठीक है, मैं तो ऊपर ऊपर बताता हूँ। ठीक है, मैं तो जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो यू शुड फॉलो द बुक। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड द लास्ट क्लास, राइट। विकास,
विकास, यस सर। okay, can you tell me what is pre-ignition? What is pre-ignition? सर प्री इग्निशन होता है जैसे टेम्परेचर सिलेंडर का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, उस समय जब मेरा फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल सप्लाई होता है पिस्टन में, तो नहीं, फ्यूल इंजेक्टर नहीं लगा रहता, ध्यान देना। फ्यूल इंजेक्टर कहाँ लगा हुआ रहता है? ओनली इन द केस ऑफ सीआई इंजन। अभी की बात नहीं कर रहे, जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल इंजन की बात करो, पेट्रोल इंजन में ही तो फ्री इग्निशन होता है, जिसके कारण डेटोनेशन होता है, राइट? यस सर। तो इसमें सर टेम्परेचर सॉरी टॉप डेड सेंटर के पिस्टन जब पहुंचता है सर, उसके पहले ही मतलब जो बर्न हो जाता है उसको बोलते हैं प्री इग्निशन। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज ठीक है, होने के तो कारण। वेरी गुड, वेरी गुड। एक दिन आप लोग को मकर संक्रांति के बाद भाईवा रखेंगे, ठीक है। आप लोग जितना अभी तक पढ़ा है आईसी इंजन, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। जितना भी आईसी इंजन का क्वेश्चन आएगा आपको पूछा जाएगा, राइट? ठीक है, तो बस बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट दैट विल बी द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, राइट? ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन करो, आपके लिए पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ो और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। एक दिन हम भाईवा रखेंगे आप लोग के लिए, ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा ना? यस सर। सीआर कौन है जी? सीआर कौन है आप लोग का? आकाश। आकाश अग्रवाल, ठीक है। तो एक दिन शेड्यूल निकाल के हम भाईवा रखेंगे आप लोग का, ठीक है। तो उसमें पता चल जाएगा आप लोग कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट का वेटेज कम बेशी नहीं होता है, और दैट इज योर कोर सब्जेक्ट। आई थिंक कोर सब्जेक्ट है ना आपका, इलेक्टिव नहीं है, कोर ही सब्जेक्ट है शायद ऐसे, ठीक है। क्रेडिट शायद 3 है, लेकिन दैट इज द कोर सब्जेक्ट हियर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द बेटर वे, राइट? ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझना है। वो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल अब शुरू से पढ़ते आ रहा है, 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बट ये जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, हाउ द कंबशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, एंड देयर मे बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक और कंसेप्ट विल बी देयर, ठीक है। हर चीज हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लास में हर चीज नहीं है। बुक आप पढ़ोगे तो आपको रियली बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप बुक पढ़ो, बुक पकड़ो, स्टार्ट करो। वो भी बुक बोल रहे हैं कि खुरमी का मत पकड़ना, बी गणेशन पकड़ो, बहुत